So, a very good morning, class. Welcome to the lecture for thermodynamics of geothermal energy. So, the topic of today's lecture will be thermodynamics of geothermal energy. In this lecture, we'll look towards the different aspects of geothermal energy, what it is, and what is the basic thermodynamics behind the geothermal energy. So, I welcome once again each and every student on this online video platform for this online lecture. So let us have a look towards the lecture, and we'll start this lecture with a PPT and with the introduction of geothermal energy. And the PPT goes like this. So says that the first slide of the PPT says that what is geothermal energy, right? The thermodynamics of geothermal energy start with a question that what is geothermal? Geothermal है क्या? तो पहले तो हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि जियोथर्मल एक्चुअली में है क्या? जियोथर्मल वर्ड से समझ में क्या आता है हमको? जब जियोथर्मल वर्ड हमारे दिमाग में पॉप अप करता है तो हमें क्या आइडिया वहां से मिलता है? ठीक है। तो जियोथर्मल पावर इज अ वर्ड विच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया जिसमें जीईओ का मीनिंग होता है अर्थ एंड थर्मल का मीनिंग होता है हीट, राइट? सो जियोथर्मल पावर इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो मीनिंग अर्थ एंड थर्मल मीनिंग हीट। तो इस दो वर्ड से हम ये तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जियोथर्मल में हमारा धरती से रिलेटेड, अर्थ सरफेस से रिलेटेड बात होगी, इनसाइड द अर्थ सरफेस रिलेटेड से बात होगी, और उसके हीट एनर्जी जो उसमें प्रोड्यूस होती है उससे रिलेटेड हमारी बात होगी। तो इट इज ऑल अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी using that heat energy which is present inside the earth. This is all what I can say in the introduction of geothermal energy. So geothermal power is from the Greek word that is GEO, meanings earth, and thermal meanings heat. Geothermal energy is generated by heat stored beneath the earth's surface or the collection of absorbed heat in the atmosphere, in the atmosphere and oceans, right? So जो भी अर्थ सरफेस के नीचे जो भी अर्थ सरफेस के नीचे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है या जो हीट एनर्जी अवेलेबल है, उस हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके हम उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। यही है जियोथर्मल एनर्जी। जियो मींस अर्थ, ओके, धरती। थर्मल मींस हीट। इट मींस using that heat energy inside the earth's surface and producing electricity is the geothermal energy. Okay, so what is geothermal energy? A renewable energy source because the water is replenished by rainfall and the heat is continuously produced inside the earth. ये क्या है? एक रिन्यूएबल फॉर्म है। सो एनर्जी का एक रिन्यूएबल फॉर्म है। कैसे? क्योंकि आपका जो हीट है वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होगा। अर्थ के सरफेस के नीचे आपका जो हीट है वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होता रहता है। सो अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स because the water is replenished by rainfall and the heat is continuously produced inside the earth. Geothermal energy is generated in the earth's core about 4,000 miles below the surface. So geothermal energy is generated in the earth's core about 4,000 miles below the surface. ठीक है। सो अगर हम ये देखें कि जो जियोथर्मल एनर्जी सोर्स का जो असली सोर्स है वो आपका सरफेस से कितने नीचे है, तो इट इज ऑल अबाउट 4,000 miles below the surface. Okay, temperatures hotter than the sun surface are continuously produced inside the earth by slow decay of radioactive particle, a process that happens in all rocks. ठीक है, तो एक रिन्यूएबल फॉर्म है, it is a renewable source of energy. Okay, the second thing is that
geothermal energy source is available almost 4000 miles below the surface. ये हीट एनर्जी कहाँ मिलती है? अर्थ के कोर में, और अर्थ का कोर 4000 माइल नीचे है सरफेस से, ग्राउंड सरफेस से, ठीक है. And temperatures hotter than the sun surface are continuously produced inside the earth by slow decay of radioactive particle, a process that happens in all the rocks. और जो सूरज, सन का जो सरफेस होता है उससे ज्यादा हॉटर सरफेस आपका 4000 माइल्स नीचे, अर्थ सरफेस के 4000 माइल्स नीचे अवेलेबल है. और वो जो हीट है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वो जो रॉक मटेरियल है वो कैसे हीट होता है? ड्यू टू दी स्लो डिके ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल. जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल प्रेजेंट है उसके स्लो डीके की वजह से आपके सारे रॉक्स गर्म हो जाते हैं, हीट प्रोड्यूस होता है, और उस हीट से हम क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और देन हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं. तो जब जब भी एक ये टॉपिक आएगा कि व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, तो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी स्टार्ट विद द introduction of geothermal, which says that it is derived from two words, geo का मतलब अर्थ एंड थर्मल का मीनिंग हीट. इसका मतलब जो अर्थ सरफेस के नीचे हीट प्रोड्यूस होता है या जो अवेलेबल है रॉक्स के, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं. पहली चीज. दूसरी चीज, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि आपका हीट कॉन्टिन्यूसली अर्थ सरफेस के नीचे प्रोड्यूस होता रहता है. तीसरी चीज, जियोथर्मल एनर्जी का जो सोर्स है, जो उसकी हीट एनर्जी का सोर्स है, वो 4000 माइल्स बिलो दी सरफेस है. और तीसरी चौथी चीज ये है कि जो टेम्परेचर है below the earth surface, it's more than the sun surface because of the slow decay of radioactive particle, a process that happens in all the rocks, right? अब अगली चीज आती है, where geothermal energy is found. Where is geothermal is energy found? ठीक है, तो एक एरिया है, ठीक है, अगर हम वर्ल्ड ग्लोब की बात करें तो एक एरिया है जिसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर. So an area called Ring of Fire has most of the geothermal activities. This borders the Pacific Ocean. तो जो पैसिफिक ओशन के आसपास का जो एरिया है, ठीक है, जो उसको सराउंडिंग एरिया है, उस एरिया को कहते हैं रिंग ऑफ फायर. और ये रिंग ऑफ फायर 4000 माइल्स जब आप नीचे जाओगे, उस सरफेस के नीचे जाओगे, तो इसे कहा जाता है कि एम्पल ऑफ हीट एनर्जी पूरी दुनिया में इसी रिंग ऑफ फायर में पाई जाती है. तो एक तरह से आप कह सकते हो कि द बेस्ट सोर्स ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी इन द इंटायर ग्लोब इज द रिंग ऑफ फायर, एंड दिस रिंग ऑफ फायर is the area which is surrounded by the Pacific Ocean, right? अब ये जो मैंने कुछ शेयर किया है आपके स्क्रीन पे, these are the some visible source of geothermal energy. अब आप में से कोई ये भी कह सकते हो कि सर volcanic eruption can be the best example, and this is true, and this is the reason why I told you that Ring of Fire is the prime location for this geothermal sources. क्यों? क्योंकि the most active volcanoes present in the entire world is found in the Ring of Fire. Very good. So the Ring of Fire is one of the prime source for the production of geothermal energy, for the extraction of geothermal energy. So these are the some visible sources of geothermal energy. Okay. अब हम देखते हैं यूजेस. हमें ये समझ में आ गया, जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं तो हमको ये तो समझ में आ गया कि व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी. ठीक है, इसका डेरिवेशन कहाँ से हुआ, ये आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है. उसके बाद हमने देखा, जब ये पता चल गया कि इंट्रोडक्शन इसका क्या है, उसके बाद हमने देखा कि जियोथर्मल एनर्जी का
डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, और इसका कौन सा एरिया है जहां जियोथर्मल एनर्जी हमें मिलती है। अब हम मैं फिर हमने देखा सम विजिबल सोर्सेस। अब हम देखेंगे यूजेस। अब इसका देखेंगे कि यूजेस क्या है इस जियोथर्मल एनर्जी का। तो इसको दो तरह से सब क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है डायरेक्ट यूज और दूसरा है इनडायरेक्ट यूज। तो डायरेक्ट यूज में आएगा आपका जियोथर्मल हीटिंग और हीट पंप्स, और इनडायरेक्ट यूज में आएगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। सो if we divide the use, it can be divided into two parts: direct use and indirect use. So direct use में geothermal heating and heat pumps, and indirect use में electricity production, right? अब रोल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जियोथर्मल में जियोथर्मल एनर्जी में थर्मोडायनेमिक्स का रोल क्या है? ओके, सी, the production of electricity from a geothermal source is about producing work from heat। ठीक है, ये जब मैंने आपको डेफिनेशन स्टार्ट किया, अभी मैंने इंट्रोडक्शन में लेक्चर के स्टार्ट होते ही तो मैंने आपसे बोला था कि हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, राइट? सो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है जियोथर्मल सोर्स से इज अबाउट द प्रोड्यूसिंग वर्क फ्रॉम हीट। मतलब हम हीट एनर्जी से वर्क को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम हीट विल नेवर बी सक्सेसफुल unless appropriate respect is paid to the second law of thermodynamics। तो जब हम हीट एनर्जी की बात करते हैं, जब किसी हीट एनर्जी सरफेस से हम उसे यूजफुल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे हमारा सबसे पहला फोकस होता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट? सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो जियोथर्मल एनर्जी को डिस्क्राइब करता है, राइट? अब हम देखेंगे आगे वो थर्मोडायनेमिक्स का क्या लॉ है, राइट? बट अभी हम देखते हैं जियोथर्मल रिजर्वॉयर्स। क्या है जियोथर्मल रिजर्वॉयर्स? ठीक है, इसमें भी दो तरह का है। एक तो लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ दीज रिजर्वॉयर इज बिटवीन 130 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो दो तरह का है। पहला है इसमें सबसे पहला है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में क्या आएगा? लो टेम्परेचर में इसका भी सब क्लासिफिकेशन है, जैसे कि जो एरिया 130 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच आता है, तो ये दिस एरिया इज ऑलमोस्ट अवेलेबल एनीवेयर ऑन द अर्थ एंड predominantly used for heating things। Okay, so low temperature reservoir are those reservoirs which are categorized on the basis of the temperature lying between 130 degrees centigrade। It's available almost anywhere on the earth, predominantly used for heating the things। Now coming to the high temperature reservoir, इसकी availability कहाँ है? Where earth crust is very thin, okay, suitable for commercial production of electricity। Power plants need high capacity geothermal reservoir, water slash steam that is greater than 220 degree Fahrenheit, that is 105 degree centigrade, greatest potential for energy output। So हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर की अवेलेबिलिटी कहाँ है होती है? जहां पे अर्थ क्रस्ट जो है वो काफी थिन होता है। ये किसके लिए सुटेबल है? फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, power plants need high capacity geothermal reservoir, that is water slash steam greater than 220 degree Fahrenheit, that is 105 degree centigrade, greatest potential for energy output। Okay, so अगर हम किसी जियोथर्मल पावर प्लांट के बारे में बात करें, उसकी स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में बात करें, तो ये है आपका उसका स्कीमेटिक डायग्राम, राइट? वेल्स, पहला, अगर आप टॉप साइड में लेफ्ट हैंड साइड आप देखो, वेल वहां पे मैंने उसको डिफाइन किया है, राइट? तो वेल क्या है? वहां पे वो एक सोर्स है,
ठीक है, हीट का सोर्स है। ठीक, वहां से हम क्या करते हैं, वहां से हम जियोथर्मल सोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर हम उसे पावर प्लांट की तरफ लेके जाते हैं, जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। डायरेक्ट यूज ऑफ हीट सप्लाई है, ठीक है, और डायरेक्ट यूज का रिटर्न, देन इट इज रिटर्न टू जियोथर्मल आउटफ्लो। ओके, तो ये है आपका स्केमेटिक डायग्राम। हमें पहले क्या करना है, हमें पहले एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक पोटेंशियल सोर्स से हमें हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना है, वो फिर आपका कहाँ को जाएगा, पावर प्लांट, और वहां के पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी एंड देन विल यूज डायरेक्ट यूज फॉर द हीट सप्लाई। सो दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ जियोथर्मल पावर प्लांट। तो अगर हम जियोथर्मल पावर प्लांट को डिफाइन करें या डिवाइड करें तो दो तरह का है। पहला है ड्राई स्टीम पावर प्लांट। ठीक है, अब इसके कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं, वो थोड़ा सा देख लो। ड्राई स्टीम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल रिजर्वायर। नेचुरल रिजर्वायर में क्या क्या आएगा, जैसे कि 180 से 225 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए, या 356 टू 437 डिग्री फ़ारेनहाइट। 4 टू 8 मेगा पास्कल प्रेशर होना चाहिए, और विंड की स्पीड होनी चाहिए 200 प्लस किलोमीटर पर आवर। ओके, स्टीम इज यूज टू ड्राइव अ टर्बो जनरेटर। सॉरी, वो जो 200 प्लस किलोमीटर पर आवर मैंने बताया है वो क्या है, वो स्टीम का है। ओके, बिकॉज वही स्टीम को हम यूज करेंगे टर्बो जनरेटर को ड्राइव करने के लिए, राइट। स्टीम इज कंडेंस्ड एंड पंप्ड बैक इनटू द ग्राउंड। अब स्टीम को फिर क्या करते हैं, उसे कंडेंस किया जाता है और इट इज देन पंप्ड बैक इनटू द ग्राउंड। कैन अचीव 1 kilowatt hour per 6.5 kg of steam. A 55 megawatt plant requires 100 kg per second of steam. Right. So this is your dry steam power plant. Dry steam extracted from natural reservoir. Natural reservoir से हम extract करते हैं। 3 points हैं इसमें. The temperature is 180 to 225 degree centigrade, that is 356 to 437 degree Fahrenheit. Pressure is 4 to 8 megapascal. Okay, then steam is 200 plus kilometer per hour. Okay, steam is used to drive a turbo generator. Steam is condensed and pumped back into the ground and can achieve 1 kilowatt hour per 6.5 kg of steam. A 55 megawatt plant requires 100 kg per second of steam. So if we look toward the dry steam schematic diagram, so this is the schematic diagram of the dry steam. Okay, so ये है आपका ड्राई स्टीम। तो आप देख सकते हो कि जो स्टीम हम जनरेट कर रहे हैं, उस जो पंप कर रहे हैं उसको हम फिर से वापस कर दे रहे हैं इंजेक्शन वेल के थ्रू ग्राउंड सरफेस में। ठीक है, स्टीम राइज कर रहे हैं, टरबाइन को रोटेट कर रहे हैं, स्टीम को जनरेट कर रहे हैं और कंडेंस करके, कंडेंसर यूज करके उसको हम फिर से बिलो द सरफेस सेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो था ड्राई स्टीम के बारे में। अब चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं फ्लैश स्टीम पावर प्लांट के बारे में। स्टीम विथ वाटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, वो स्टीम विथ जो ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है विद द वाटर। प्रेशर ऑफ मिक्सचर ड्रॉप्स एट सरफेस एंड मोर वाटर फ्लैशेस टू स्टीम। Steam separated from the water. We need those steam which has been separated from water, right? Steam drives a turbine. Steam का काम क्या है, to drive a turbine. Turbine drives an electric generator. फिर वो turbine क्या करता है, it drives an electric generator. Generate between 5 and 100 megawatt. ठीक है, हम क्या करते हैं, देखो समझने की कोशिश करिए। We extract the steam with water. Pressure of mixture drops at surfaces and more water flashes to steam, and the steam separated from the water, and this steam drives a turbine, and then turbine drives an electric generator.
generate between 5 and 100 megawatt, use 6 to 9 tons of steam per hour. Okay, अब फ्लैश स्टीम स्कीमेटिक डायग्राम देखो, ठीक है। फ्लैश स्टीम स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में देखते हैं। स्टीम ब्राइन सोल्यूशन होता है, ठीक है। अब इस ब्राइन सोल्यूशन का यूज करके हम टरबाइन को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ओके, हम टरबाइन को रोटेट कर रहे हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लैश स्टीम। तो फ्लैश स्टीम और ड्राई स्टीम में डिफरेंस क्या है? दैट हैज बीन डन। ड्राई स्टीम जो अगर बात करें तो उसमें वाटर नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हम वाटर के थ्रू स्टीम का प्रोडक्शन करेंगे और देन उससे हम अपनी टरबाइन को रोटेट करेंगे, देन ब्लेड को रोटेट करेंगे और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। सो दिस इज योर फ्लैश स्टीम। ओके, नाउ कमिंग टू बाइनरी साइकिल पावर प्लांट, significant points: it should have low temperature, that is 100 and 150 degrees centigrade. Use heat to vaporize organic liquid, example isobutane, that is isopentane. Use vapor to drive the turbine. Causes vapor to condense, recycle continuously. Typically 7 to 12% efficient, and 0.1 to 40 megawatt units common. This is your binary cycle schematic diagram. So अगर हम बाइनरी साइकिल के बारे में बात करें तो उसकी कुछ सेलियंट पॉइंट्स ये हैं कि द लो इट रिक्वायर्स द लो टेम्परेचर, that is 100 and 150 degrees centigrade. Use heat to vaporize the organic liquid, that is isobutane या isopentane. Use vapor to drive the turbine. Causes vapor to condense, उसके बाद vapor को हम condense करते हैं and then एक बार कंडेंसेशन के बाद हम उसे फिर से अर्थ सरफेस के नीचे इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये एक साइकिल फॉलो होता है, राइट। मतलब पहले एक्सट्रैक्ट करो, ग्राउंड सरफेस से एक्सट्रैक्ट करो, देन उसको वेपर में कन्वर्ट करो, वेपर को कंडेंस करो, देन उसे फिर अर्थ सरफेस में इंजेक्ट करो। और ये 7 to 12% एफिशिएंट है एंड जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो 0.1 to 40 मेगावाट्स यूनिट्स, ठीक है। तो if we look toward the binary cycle schematic diagram, this it goes like this, it is like this. तो प्राइम फोकस क्या होता है? पहले तो हम क्या करते हैं, या तो तुम ड्राई स्टीम के बारे में बात करो या फ्लैश स्टीम के बारे में बात करो। यूज होता है हमारा जो भी उसका एप्लीकेशन है उसका हम शुरुआत करते हैं पहले ब्राइन सोल्यूशन से, देन उस ब्राइन सोल्यूशन को हम एक्सट्रैक्ट करके हम देन टरबाइन को रोटेट करते हैं, राइट। और उसके बाद उसको हम वेपर में, वेपर फॉर्म में देन प्रोड्यूस करते हैं, देन वेपर को कंडेंस करते हैं और वेपर को कंडेंस करने के बाद हम इंजेक्शन वेल के थ्रू उसे ग्राउंड सरफेस में फिर से डाल देते हैं, राइट। उसे वहीं पहुंचा देते हैं। इसका मतलब ये साइकिल है, एक बार उसे एक्सट्रैक्ट करो, एटमॉस्फेयर में लेके जाओ, उससे ब्लेड को रोटेट करो, देन रोटेट करने के बाद उसे वेपर को कंडेंस करो, देन कंडेंस करने के बाद उसे फिर से इंजेक्ट करो, ठीक है। डायरेक्ट यूज टेक्नोलॉजीज, अब देखो डायरेक्ट यूज कैसे कर सकते हैं जियोथर्मल का। सो जियोथर्मल हीट इज यूज डायरेक्टली rather than for power generation. Okay, extract heat from low temperature geothermal sources lying below 150 degrees centigrade or 300 degrees centigrade. Applications sited near source, that is less than 10 kilometer. So the best part is that we can use the technology directly for the power generation, ठीक है। geothermal heat is used directly rather than for power generation. Extract heat को extract करते हैं from the low temperature geothermal sources, that is
The temperature should be 150 degree centigrade to 300 degree centigrade या उससे कम. Application sited near source less than 10 kilometers. Okay, so this is geothermal energy for the home. This is how we use the geothermal energy for direct use. And this is divided into vertical loop, horizontal loop, slinky loop, and pond loop. Now coming to the advantages of geothermal energy. It is a renewable source of energy, मैंने बताया. By far it is non-polluting and environment friendly. There is no wastage or generation of byproduct. Geothermal energy can be used directly. In ancient time, people used this source of energy for heating homes, cooking, etc. Maintenance cost of geothermal power plant is very less. Geothermal power plant do not occupy too much space and thus help in protecting the natural environment. And unlike solar energy, it is not dependent on the weather condition. Okay, because solar energy पे weather condition पे depend करते हैं, but geothermal energy में हम solar energy पे sorry weather पे depend नहीं करते हैं, right? Disadvantages भी हैं कुछ. Only few sites have the potential of geothermal energy. So ये बहुत डिपेंड करता है कि हमारी जो साइट्स हैं वो कितना पोटेंशियल है जियोथर्मल सोर्सेस के लिए. और बहुत सारे साइट्स नहीं अवेलेबल हैं. जो भी आपका रिंग ऑफ फायर के आसपास है एरिया, उसी से हम जियोथर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द साइट्स वेयर जियोथर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड आर फार फ्रॉम द मार्केट्स और सिटीज वेयर इट इज नीडेड टू बी कंज्यूम. ठीक है, तो लोकेशन में और एक्सट्रैक्शन में काफी दूरी है. देयर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ इरप्शन ऑफ वॉल्केनो. वॉल्केनिक इरप्शन का डेंजर हमेशा रहता है, क्योंकि वो ऐसे एरिया में ही अवेलेबल है, ऐसे साइट्स. फॉर एग्जांपल पैसिफिक ओशन, रिंग ऑफ फायर. तो दिस has been estimated that most of the active volcanoes are present in those areas. Installation cost of a steam power plant is very high. There is no guarantee that amount of energy which is produced will justify the capital expenditure and operation cost. So justification नहीं है कि आप जितना पैसा उसमें खर्च कर रहे हो, जितना उसको कैपिटल उसमें आप लगा रहे हो, उसके ऑपरेशन कॉस्ट में उसे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, उतने ही अमाउंट की एनर्जी आपको प्रोड्यूस होगी. इट में रिलीज सम हार्मफुल एंड पॉइजनस गैस, नो डाउट. वॉल्केनिक eruption है तो लावा वगैरह तो मिलना ही है. पॉइजनस गैसेस दैट कैन escape through the holes drilled during constructions. So ये है आपका टोटल जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेस का थर्मोडायनेमिक्स. एक बार मैं फिर से थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी के बारे में. हमने पहले देखा कि व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी. तो एक छोटा सा डेफिनेशन अगर निकल के आया तो वो है कि अर्थ सरफेस के नीचे जो हीट अवेलेबल है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, और ये एक गीक वर्ड से आया है, जियो और थर्मल. उसके बाद हमने देखा कि जियोथर्मल एनर्जी एक रिन्यूएबल फॉर्म है एनर्जी का. 4000 माइल्स अगर हम बिलो द सरफेस जाएंगे तो वहाँ पे अर्थ कोर में हमको ये सोर्सेस अवेलेबल होंगी. टेम्परेचर जो है वो आपका जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वो आपके सन के सरफेस से ज़्यादा हॉटर होता है. वाई? बिकॉज ऑफ द डिके ऑफ द रेडियो एक्टिव पार्टिकल. जियोथर्मल एनर्जी कहाँ पाई जाती है? दैट एरिया इज नोन एज रिंग ऑफ फायर. दैट इज द बॉर्डर्स ऑफ द पैसिफिक ओशन. Then these are the some visible sources of geothermal energy. Then uses में direct use है, indirect use है, geothermal heating है, heat pumps है, electricity production है. Then role क्या है thermodynamics का? Because जब geothermal energy की बात होती है तो ये बोला जाता है कि heat energy को हम convert करते हैं. तो it all starts with the second law of the thermodynamics, जिसमें आपका efficiency is ईटा कैरोनॉट इंजन की अगर हम बात करें तो 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच. जियोथर्मल रिजर्वायर लो टेम्परेचर रिजर्वायर, और दूसरा मैंने बताया आपको हाई टेम्परेचर रिजर्वायर्स, राइट. देन दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द geothermal power plant. Then we have divided the power plant into two
basic types, that is dry steam power plant, okay, extracted from the natural reservoir, ठीक है, और 1 किलो आर पर 6.5 kg of steam. Dry steam schematic diagram ये है आपका. Then coming towards the flash steam power plant, that is steam extracted with the water and it finally flashes to steam. That is the steam separated from water, or it drives a turbine. The turbine drives an electric generator, generate between 5 and 100 megawatt, uses 6 to 9 tons of steams per hour. This is your schematic diagram of a flash steam uh, power plant. Then it is your binary cycle power plant. That is, if we divide it, it will like this: ki low temperature, that is 100 to 150 degrees centigrade, is uses the heat to vaporize the organic liquid, and that is isobutane and isopentene. और वेपर को हम यूज करते हैं to drive the turbine, and this causes the vapor to condense, and then we recycle it continuously, and efficiency is around 7 to 12%. So 0.1 to 40 megawatt units are produced. This is the schematic diagram of your binary cycle. और ब्राइन सोल्यूशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो यूज होता है. डायरेक्ट यूज टेक्नोलॉजी हम डायरेक्ट पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं. एंड जियोथर्मल एनर्जी फॉर द होम, हॉरिजॉन्टल लूप, स्लिंकी लूप, पॉन्ड लूप, वर्टिकल लूप. एडवांटेजेस मैंने बता दिया. सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इट कैन बी रिप्लेनिश्ड. डिसएडवांटेज ये है कि उतना साइट्स अवेलेबल नहीं है, पोटेंशियल साइट्स अवेलेबल नहीं है. और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि देयर इज नो गारंटी दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड विल जस्टिफाई द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑपरेशन कॉस्ट. एंड उससे भी बड़ा डिसएडवांटेज है कि इट मे रिलीज सम हार्मफुल एंड पॉइजनस गैसेस, बिकॉज जब भी इस तरह की साइट को हम ढूंढने जाते हैं तो इट मे अकर दैट वॉल्केनिक eruption कैन टेक प्लेस, because ring of fire is known for the volcanic eruption and for the active volcanoes. So this was all about the your thermodynamics of geothermal energy. If you have any question, the questions are most welcome. And thank you so much for this lecture, and for having your patience to hear this lecture.